Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we are going to talk about rare earth elements. Okay, so these tiny, powerful metals, it controls our modern lives, and they are quite important from today's economic perspective. Okay, from smartphones, electric cars to fighter jets and satellites, they are used in everywhere, and you might not see them, but without them our daily life would almost stop. Okay, so we'll have today we understand this news article which tell us that how China became the boss of these metals and what role can India play in this global game. Okay, so let's start. Yes, students, like I said earlier, uh, if you open your phone now, you will see metal parts, you will see magnets and shiny screen. Now hidden inside are small amounts of special metals like neodymium, yttrium. These are what? These are rare earth elements. Okay, rare earth. And there are 17 of them in total. ठीक है, आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखा होगा, स्पेशली जो क्लास 8th में है स्टूडेंट्स, राइट, 9th में है, 7th में है, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, राइट. सो हेयर इस तरफ आपने ऐसे देखा होगा, 2 rows बनी हुई है, राइट. सो दीज 2 rows, they have rare earth elements. Okay, and there are total 17 of them. 17 of them. ठीक है, so they include 17 metallic elements lower down in the periodic table, from lanthanum to lutetium plus scandium and yttrium. ठीक है, और इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज है. क्या है इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज? इनकी प्रॉपर्टीज है कि ये कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल. They have a high melting point and they make magnets extremely strong. तो ये इनकी क्वालिटीज हैं. क्या क्वालिटीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड, दे मेक मैग्नेट्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. तो इसीलिए इनको कहाँ यूज किया जाता है? विंड टर्बाइंस. दे आर यूज्ड इन विंड टर्बाइंस, electric vehicle motors, mobile phones, computers, missiles and fighter jets, even MRI scanners in hospitals. So even though they sound like something from a uh, you know out of the box, totally, these elements are everywhere. They are quietly powering modern technology. Now, अब इसका नाम देखो क्या है? रेयर अर्थ. रेयर अर्थ्स, राइट. तो क्वेश्चन ये है, आर दे रियली रेयर? Where the surprising students, the surprising thing is they are not actually rare. Scientists say that some of these elements like cerium, cerium, they are even more common in Earth's crust than gold or silver. गोल्ड और सिल्वर से भी ज्यादा कॉमन है, राइट. तो अब जैसे यहाँ पे, तो अब बात होती है कि उनको रेयर अर्थ क्यों कहते हैं, राइट. हियर इट इज रिटन, 2 main reasons why the tag rare is used. क्या 2 main reason है? फर्स्ट ऑफ ऑल, they are not found in large deposit. Although they are moderately abundant, these are not found in large concentration, large large deposits. They exist in small traces spread across rocks and soils. ठीक है, छोटे छोटे ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं रॉक्स और सॉइल्स पे. इसका मतलब क्या हुआ कि उसको एक्सट्रैक्ट करना इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग. Okay, extracting them is costly and time consuming. Second, mining. Mining them is dirty and difficult. Why? Because the process creates toxic waste and it causes pollution. So even though earth has plenty, not many countries want to mine them. That's where China saw an opportunity. Okay, तो चाइना ने कैसे स्टार्ट किया? So let's go back to the late 80s. China's leader at the time was Deng Xiaoping.
ही मेड अ फेमस स्टेटमेंट. उनका स्टेटमेंट पता है क्या था? द मिडल ईस्ट हैज ऑयल. मिडल ईस्ट जो कंट्रीज है उनके पास ऑयल है ना, आपको पता है, वहां से हम ऑयल बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं. सो ही सेड दैट मिडल ईस्ट हैज ऑयल, चाइना हैज रेयर अर्थ्स. एंड ही वाज राइट. चाइना began investing heavily in mining and refining rare earths. ठीक है. तो क्या किया? चीप लेबर प्रोवाइड किया, रिलैक्स्ड एनवायरमेंटल रूल्स, मैसिव स्टेट सपोर्ट. So over the years, other countries like the US and Australia found it too expensive to compete. And fast forward to today, China now control 60%. Yes, 60% of world's rare earth production, and even bigger share for of global refining. That means most countries depend on China to process and supply these elements. चाइना पे बहुत सारी कंट्रीज डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना देखो 60% तो उसका शेयर है रेयर अर्थ प्रोडक्शन में, और ग्लोबल रिफाइनिंग में उससे भी ज्यादा शेयर है. ओके. सो इट्स लाइक चाइना कंट्रोल्स द बैटरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बैटरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. क्यों? क्योंकि बैटरी में रेयर अर्थ यूज होता है, राइट right? तो इस तरह से चाइना का बहुत बड़ा शेयर है. अब रेयर अर्थ को लेकर यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर भी स्टार्ट हो गया. Recent years, what happened? China and the US have been locked in a trade war. They are fighting over technology, tariffs, global influence. And guess what? One thing that is Beijing's that can be considered as Beijing's strongest weapon in this war is, yes, of course, rare earth. Rare earth ही है. क्योंकि देखो, जैसे ही यूएस ने चाइना के गुड्स पे, चाइनीज गुड्स पे टैक्स इंक्रीज किया, टैरिफ इंक्रीज किया, चाइना ने क्या किया? चाइना रिस्पॉन्डेड बाय टाइटनिंग रेयर अर्थ. ओके. सो इट स्टार्टेड रिक्वायरिंग स्पेशल लाइसेंसेस फॉर एक्सपोर्टिंग की एलिमेंट्स लाइक गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, लुटेशियम हो गया. ओके. तो चाइना ने ऐसे स्टार्ट किया, राइट. यहाँ पे देखो, इस पूरे आर्टिकल में यहाँ पे मेंशन है. तो मतलब कि अब कहने का मतलब क्या है कि यू कैन सी इट एज दिस वाज चाइनाज वे ऑफ सेइंग इफ यू ब्लॉक आवर प्रोडक्ट्स वी कैन ब्लॉक योर टेक मटेरियल्स. And for countries like US, Japan, and South Korea, which depend on these materials for industries, this move, students, it created worries. Even President Donald Trump warned that the US must stop depending so much on China for these elements. And he once said that for every element they monopolize, we must have two. ऐसा उन्होंने कहा. ठीक है. For every element they have been able to monopolize, we must have two. Okay. ऐसा उन्होंने पोस्ट किया था. अब what does the world map look like? देखो यहाँ पे एक मैप भी इंक्लूडेड है इस आर्टिकल में. यस. अब अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डेटा, द वर्ल्ड्स टोटल रिजर्व्स आर 13 करोड़. ओके. इट इज अप्रॉक्स 13 करोड़, 13 करोड़ टन्स. वियतनाम और ब्राजील ऑल्सो हैव ह्यूज रिजर्व्स. चाइना के पास देखो, या वर्ल्ड के पास चाइना के पास इतना है, फिर वियतनाम है, ब्राजील है. इंडिया के पास कितना है? इंडिया के पास 69 लाख टन है, स्पेशली इन कोस्टल सैंड्स. बट हियर्स द कैच. हैविंग रिजर्व इज वन थिंग एंड प्रोड्यूसिंग देम इज अनदर. ठीक है. रिजर्व तो है, लेकिन उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? तो 2022 में अगर आप देखो, सबसे ज्यादा टॉप प्रोड्यूसर्स वर चाइना, राइट. चाइना के बाद क्या है? यहाँ पे 2,10,000 है, फिर 25,000 किसका है? यूएस का है, राइट. उसके बाद
यस, म्यांमार भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑल राइट, इंडिया का कितना है? इंडिया का ओनली 4200 वर्ल्ड प्रोडक्शन। सो वाइल इंडिया एंड अदर्स हैव द रॉ मटेरियल तो है, लेकिन चाइना क्या कर रहा है? चाइना डोमिनेट्स प्रोडक्शन because it mastered the refining process and built massive infrastructure around it. Okay, so question is why it is hard to catch up for other countries. See students, mining rare earth is not like mining gold or coal. जैसे गोल्ड और कोल की माइनिंग होती है, वैसा नहीं है रेयर अर्थ का। रेयर अर्थ का जो माइनिंग है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैसे है, or it involves chemical processing that can harm the environment. So many countries shut down their rare earth mines because of pollution and high cost. But China kept going and took over the refining business too. So even if another country mines rare earth, the ore often still goes to China for purification. समझ में आया आपको? कि अगर दूसरी कंट्री कर भी लेती है, और एक्सट्रैक्ट कर भी लेती है, लेकिन उसका जो प्योरिफिकेशन है उसको करने के लिए चाइना भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना करता रहा, बाकी कंट्रीज ने बंद कर दिया, pollution, because of pollution and high cost. So it's like other countries bake the cake, but China gets to cut and serve it. So it's like that. Are you understanding? अब यहाँ पे इंडिया का क्या पिक्चर है? इंडिया की बात करते हैं। देखो, इंडिया के पास, मैंने आपको जैसे पहले बताया, इंडिया हैज डिसेंट रिजर्व्स, स्पेशली अलोंग इट्स कोस्ट, जैसे केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु। एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि इंडिया के कोस्ट, केरला कोस्ट में मोनाजाइट इज फाउंड। ओके, मोनाजाइट इज फाउंड। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है मोनाजाइट? तो दिस इज ट्रू, एनसीईआरटी में भी ये स्टेटमेंट लिखा है। ओके, सो इंडिया हैज डिसेंट रिजर्व स्पेशली अलोंग इट्स कोस्ट, जहां पे बीच सैंड में क्या मिलता है, कौन सा मिनरल? मोनाजाइट भी मिलता है और इल्मेनाइट भी मिलता है, एंड दीज आर रिच इन एयर रेयर अर्थ्स। तो इंडिया की कंपनी है IREL, and it already operates processing unit within capacity. but चाइना का जो कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया कहाँ 10,000 टन ही करता है प्रोसेस, 10,000 टन। और इसके कंपैरिजन में अगर चाइना का देखें, चाइना कितना प्रोसेस करता है? 2 लाख टन प्रोसेसिंग। ओके, तो इंडिया भी अभी धीरे धीरे कर रहा है। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ न्यू ग्लोबल अलायंसेस, कोऑपरेट कर रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया, राइट? तो अभी धीरे धीरे इंडिया भी इन्वॉल्व हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज एट द एंड, व्हाई डज इट मैटर फॉर अस? यू माइट बी वंडरिंग, ठीक है, तो हमें एज अ स्टूडेंट हमें क्यों मैटर करना चाहिए? सी, अगर आप अपने फोन के देखो, लैपटॉप को देखो, क्लासरूम प्रोजेक्टर को देखो, all these need rare earths. So, global shortages or export restrictions can directly increase the cost of electronics. It can increase the cost of renewable energy system, even defense equipment. So, it also tells us something bigger, that control over resources still shapes the world power. जैसे 20th century में oil ने किया था ना, today the new oil of the digital age is rare earths. Okay, तो इसको देखते ही कंट्री क्या कर रही है? कंट्रीज आर, दे आर नाउ ट्राइंग टू रिसाइकल रेयर अर्थ फ्रॉम ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, दे आर फाइंडिंग सब्सिट्यूट, दे आर ओपनिंग न्यू माइंस, एंड दे आर कोऑपरेटिंग इंटरनेशनली फॉर स्टेबल सप्लाई चेन। इंडिया भी यही कर रहा है, इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा है ग्रीन माइनिंग में, so that the process doesn't harm nature. So the future of rare earth is not just about mining, it's about innovation, sustainability. Okay, all right. So students, that is all for today. And uh, you may have understood that the rare earth, although they may be hidden, but their power is shaping the future of nations. All right. So I'll see you in the next episode. Bye bye. Take care.